Right, A. This is the correct answer. This can't be the correct. This can't be the correct graph. It can't be the correct graph. This is wrong actually. Why? Because you know that if you see for a particular time, you will find that there are two positions of the object. See x1 and x2, and it is not possible that the same body can be there at two positions. It's not possible. It's not possible that the same body is there for two positions. It's not possible, and that's why this is the correct answer, because it is the wrong graph. Let us see another question. Now in this question, again I'm going to ask you related to position time graph. Okay, suppose that there is a position time graph like this, position time graph, and there are two objects A and B. Okay, and their position time graphs are given. Now it is asked that which one has greater now relation between their velocities is asked. First, relation VA is greater than VB. Second, VA is equal to VB. Third, VA is lesser than VB. And the fourth, none. Yes, go for it fast, everyone. Go for this. What should be the correct one? Come on, do it a bit fast. I thought that I will get a quick response from you. See here, in order to explain this, the concept of slope should be applied. You see this angle, this is lesser and this is more. Okay, this is lesser and this is greater angle. If this is lesser angle and this is greater angle with the time axis. So do remember this. That if the angle is greater, then the slope is greater. Slope is greater, then the velocity is greater. Okay. So this angle represents the slope, and if slope is greater, then the velocity is also greater. Okay. If the slope is greater, then the velocity is also greater. आई बात समझ में? तो B जो है उसका एंगल कम है और A वाले का एंगल ज़्यादा है, तो velocity of A would be greater than B, and correct option is 1. See, if speed time graph is given, see this speed time graph, right? This is speed, and here we have time. Speed time graph is given. First is this, second is this, third, this is first, this is second, then there is third, and the third one is like this, and the fourth one is like this. Okay, they all are speed time graph. Okay, this is speed time graph. Now you tell me which one is correct, which one is not possible, which graph is not possible. Okay, good. Third one. Okay, first, second, third, fourth, these are the options. Okay, second one, Parth is saying second one. Okay, Parth is saying second one. Okay, Parth, because speed cannot be negative. Very good, Gaurang. Very good, Parth. You both must have thought this. Very good. You see, here speed is positive and here in this interval it is negative. Speed can't be negative. How can speed be negative? It can't be negative. And if it can't be negative, so this is wrong. And if this is wrong, so this is the correct option, because what was asked in the question was that which one is the wrong graph. Okay, let's continue. I hope that you are enjoying these questions.
Okay, let's continue. One more question. Here comes, see there is a distance time graph है ना, एक distance time graph given है, उसका ये distance time graph है, और ये distance time graph जो है distance time graph में एक्चुअली ये ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है ना, ध्यान से देखना, ठीक है, ऐसे गिवन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसा है, ठीक है, ये फर्स्ट है। देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेकंड है, वो ऐसा है, ठीक है। थर्ड है, वो ऐसा है। ये सब डिस्टेंस टाइम है, हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थर्ड है, वो ऐसा है। और फोर्थ ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो ऐसा है। अच्छा, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा रॉन्ग है, विच वन इज रॉन्ग, विच ग्राफ इज रॉन्ग हियर। कम ऑन एवरीवन, टिक टॉक, थिंक फास्ट। I feel third, sir. Okay, see, first, second, third, and this is the fourth one. Yeah. So Parth is saying he feels third one. Okay, he feels third one. Wait, no, sir. Fourth. Parth is saying fourth one. Okay. Anyone else? Parth said fourth one. Anyone else? Sir, distance cannot be negative. हाँ, but in any case here distance is not negative. Okay, in all cases it is positive only. But so logic is not right. Distance in any case here it is not negative. However, by the definition of distance, you know that distance is the length of the actual path. So length of the actual path can never decrease. Okay, it can't decrease with time. Here see, it is increasing only. Here see, it is increasing only. Here see, increasing only. Yes, yeah, I know that you meant actually that only. However, I just wanted to correct you. See, so here what is happening, it is going like this, and then distance covered is decreasing, which is not possible. Distance covered can't be decreased. If object is moving, then how can distance covered be decreased? It can't. And that's why do remember that distance covered, it can't be decreased. Okay, so the correct answer of this, correct option for this, because this one is not correct, and that's why this is the correct one, because the question was which one is wrong. Okay, so this one is wrong, right? Understood? Now slight change I am making in these graphs and changing the question a bit. Okay, now you see, there is one graph this, another is this. Okay, now we have four options here. In distance time graph, which graph represents, सुनना ध्यान से, in these distance time graphs, which graph represents deceleration? Which graph represents deceleration in the motion of the object? इसमें से कौन सा ग्राफ डीएसेलरेशन को शो कर रहा है? बेटा जल्दी जल्दी सोचो। थर्ड वन, आनिया कह रही है थर्ड वन डीएसेलरेशन को शो कर रहा है, थर्ड वन। गौरांग जोशी कह रहा है थर्ड वन। अच्छा, सेकंड कह रहा है पार्थ। ओके, और पार्थ ने अभी तक लगभग सभी सही बताए हैं, लगभग सभी सही बताए हैं उसने। बेटा थर्ड नहीं हो सकता, ये सेकंड होगा। हाँ आनिया, सेकंड होगा, क्योंकि देखो इसको समझो, आप याद करो, है ना। ये तो स्टैंडर्ड कर्व है, कर्व्ड अपवर्ड यानी क्या होता है? कर्व्ड अपवर्ड यानी स्पीड इंक्रीज होती है, कर्व डाउनवर्ड यानी स्पीड डिक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज होना मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड डिक्रीज होना मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना। और यहाँ ठीक है, समझ गए? तो कौन सा होगा आप? हाँ गौरांग, वेरी गुड। तनिष्क बोल नहीं रहा है, तनिष्क बोल बेटा, तनिष्क
इन्वॉल्व रहे बेटा, इन्वॉल्व रहे, है ना, सोचो जल्दी जल्दी और बोलो। तनिष्क, स्वप्निल, अदिति, हार्दिक, बोलो जल्दी जल्दी, है ना। ठीक है, तो देखो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कर्व अपवर्ड है मतलब ये एक्सेलरेशन है, कर्व डाउनवर्ड है मतलब डी एक्सेलरेशन है। आई बात समझ में? तो ये डी एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है। अच्छा, विच ग्राफ, इसमें बोल रहा हूँ, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स मोशन, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसमें कौन सा ग्राफ है जो रेस्ट? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फर्स्ट वन। ये दिख रहा है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी बात है। सभी इन्वॉल्व रहेंगे, मज़ा आएगा, मालूम है। देखो मज़ा इसी का है। देखो एक और बात मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को और ट्विस्ट कर सकते हो। देखो कैसे, इन विच ग्राफ, या ऐसा कह सकते हो, बाय विच ग्राफ यू कैन कंक्लूड दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब सोचो, बाय विच ग्राफ यू कैन कंक्लूड दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। किस ग्राफ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो जीरो है? यस, कम ऑन, फोर्थ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना। सभी ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छा। देखो कितना मज़ा आया, सोचना पड़ा ना, कि आपको सोचना है एक्सटर्नल, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो गया तो बात क्लियर होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्शन में डिफर बट स्पीड में रिमेन कांस्टेंट, and if speed is remaining constant, then it covers equal distances in equal intervals of time. So this is the speed constant graph, okay। और speed constant है तो velocity ज़ीरो हो सकती है, केस है, हो सकती है। और अगर हो सकती है तो आपको पता है एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस इज़ अगेन द ग्राफ विच इज़ शोइंग दैट द एक्सटर्नल फोर्स इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब सपोज़ करो एक ऐसा रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है, और इस रिजिड सपोर्ट पर एक ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा हैंग कर दिया है ना। ऑब्जेक्ट इज़ हैंग हियर ऑन अ रिजिड सपोर्ट, और यहाँ पर एक और थ्रेड लगा के रखा है। ठीक है, अब ये पॉइंट ए गिवन है, ये पॉइंट सी गिवन है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको सुनना, इस केस में क्या कर रहे हो, आप इसको धीरे 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 धीरे, नहीं, इसको आप तेज़ी से क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तेज़ी से खींचते हो ऐसे। अब तेज़ी से जब आप इसको खींचते हो तो ये जो है थ्रेड, ये कहाँ से टूटेगा? ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसमें और भी पॉइंट है ना, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, मान लो ए, या एक काम करते हैं उसको अपन देखते हैं, रुको, है ना। ऑप्शंस हैं आपके कि ए से टूटेगा, ठीक है। ऑप्शन है आपका कि ये यहाँ से बी से टूट जाएगा, ठीक है। तीसरा है सी से टूटेगा, और चौथा है नन, पता ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, वो मजबूत है ना। अब बताओ क्या होगा? अच्छा, ये मजबूत है को मत लो यार, है ना, इसको रहने दो, ठीक है। ऑप्शन 4 मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं तो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको। इस तरह से भी बन सकता है क्वेश्चन। तो अगर आप झटके से उसको खींचते हो तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो कहाँ से टूटेगा अगर झटके से खींचते हो? तो बी से, यहाँ से टूटेगा। अच्छा, ठीक है, नॉट श्योर, हाँ सही बात है। देखो, अगर आप तेज़ी से खींचते हो ना तो ये जो फोर्स है ना, ये ट्रांसमिट ही नहीं हो पाता है। इट इज़ लाइक कि वो जो है यहीं पर सारा जो है फोर्स कंसंट्रेटेड रहता है ना, जिसको बोलते हैं इनर्शिया के कारण। तो क्या होगा, वो यहाँ से टूट जाएगा, है ना। लेकिन आप अगर धीरे धीरे खींचोगे ना तो ये फोर्स जो है ट्रांसमिट हो पाएगा यहाँ तक, तो फिर वो धीरे धीरे में यहाँ से टूटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये तो रेस्ट में रह जाएगा, और ये तेज़ी से क्या हो जाएगा, इस तरह से टूट जाएगा। आई बात समझ में? तो ये, हाँ,
तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट था जो मैंने सोचा कि इस तरह से आपसे एक्चुअली पूछ सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है, एक बॉडी है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका है और वो वापस आ जाती है जाकर, ठीक है, राइट। देयर इज अ बॉडी विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन इट रिटर्न्स बैक, ठीक है। अब आपको कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, ग्राफ्स ऐसे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स दिए हुए हैं। ग्राफ्स कैसे हैं मैं बता देता हूँ। एक ये दिया है, ये 1 है। सेकंड दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो कुछ ऐसा है। थर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, वो कुछ ऐसा है। और द फोर्थ है वो कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा गिवन है, ठीक है। अब इसमें से सही कौन सा है, विच वन इज करेक्ट? वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है और वो वापस आ रही है, सो विच वन इज करेक्ट? जल्दी से देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वह है 4। क्या है इसका आंसर? 4। हाँ, तनिष्क शर्मा ने कहा है 4, वेरी गुड। क्यों है 4 समझना। देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट जो है जब आपने उसको ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो देखो डिक्रीज तो इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, इनमें इंक्रीज हो रही है, तो ये दोनों तो गलती हो गए। इंक्रीज कहाँ से होगी? ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये यहाँ पर जाने के बाद में ऊपर चला जाता है और ये यहाँ पर जाने के बाद में नीचे जाता है। नीचे जाने का मतलब समझना, नीचे जाने का मतलब क्या है और ऊपर जाने का मतलब क्या है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है पॉजिटिव ही रहती है, सेंस जो है उसका वो पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी जो है नेगेटिव एक्सिस में चली गई, मतलब कि उसकी डायरेक्शन बदल गई। समझो ये अंतर है इसमें, यहाँ पर ये पॉजिटिव थी और यहाँ जाके ये नेगेटिव हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब देखो यहाँ क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ जाकर अगर वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि पहले वो ऊपर जा रही थी, अब वो नीचे जा रही है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चों, तो चेंज इन डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना था। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ग्राफिकल मोशन के आप सभी को एनटीएससी प्रिपरेशन में बहुत मदद करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।